اپنے یہاں 2 دن پہلے کشمیر میں بڑا دردناک واقعہ ہوا اور اس کا دکھ ہم تمام بھارت کے بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں 26 27 یا 28 کو اس میں ہم کو تصویریں دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اسلام کے نام پر یا کسی اور مذہب کے نام پر بھی کسی نردوش کو مارنا، کسی کے اسلام تو اسلام ہے. میں ہی کہتا ہوں ایسا کرنے والا انسان بھی نہیں ہو سکتا. جانور سے بھی گیا گزرا ہے، جانور کے اندر بھی دیا ہوتی ہے. بہت تکلیف ہمیں ہوئی. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کیا کہ جنہوں نے پوری زندگی حضور کو اذیتیں دی، مگر یہ آمنہ کے لال تھے کہ ان کے لیے بھی آپ رحمت بن کے آئے. حق یہ لوگ، یہ تو جانچ میں پتہ چلے گا کیا ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہیں بہت تکلیف ہوئی. کسی کی پہچان پوچھ کر کے اس کے ساتھ اس طرح کا وہ کرنا بہت غلط ہے. بے پناہ ایسے لوگوں کو پبلک کے سامنے پھانسی ہونا چاہیے، سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے. یہ میں نے اس لیے ذکر کیا تاکہ ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں تک بھی یہ پیغام جائے، میسج جائے. اور بھی میں نے کل کی تقریروں میں بھی کہا، پریس والوں سے بھی کہا کہ بھئی ہم تکلیف اور غم کے اس ماحول میں، غم کی اس گھڑی میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے نشانہ بشانہ. کیونکہ ہمارے ہندو بھائی بھی ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے، ورنہ زیادہ تر لوگ تو بھی اپنے دوسرے کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے. اور میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ بلکہ کوئی شعر بھی پڑھنے کا من نہیں کرتا، اتنا دل دکھا ہوا ہے اس واقعے سے، تکلیف پہنچی ہے. کسی کا آشیانہ اجڑ جاتا ہے، کسی کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو بڑا. لیکن وہاں ایک سجاد نام کا تھا لڑکا، وہ آپ کی ہی عمر کے ہوں گے. اس نے کتنے بیچارے وہ سیاحت کرنے گئے تھے، وہاں پہ لڑائی ہو گئی تو وہ اپنی پیٹھ پہ اتار کر کے انہیں لے کر گئے. اور ہمارے ہندو بھائی بھی ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، سلام. اس نے جان، اور اس نے آج انٹرویو میں بتایا کہ میں اکیلا نہیں تھا، 18-20 ایسے لوگ تھے جو جان پر کھیل کے اپنے ہندو بھائیوں کی جان بچا رہے تھے. تصویر یہ بھی آئی. اور کتنی جگہوں پہ میں نے دیکھا، کرونا کا جب زمانہ چل رہا تھا تو ہندو بھائی بھی ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جان، مطلب اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے ان کے لیے مدد کی. تو یہ اپنا بھارت ہے، بہار کا ملک ہے، یہ غریب نواز کا ملک ہے، یہ حضرت وارث پاک کا ملک ہے، یہ محبت کا ملک ہے. ایسی اور ایک وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی وہ سیاحت کرانے والا تھا، میڈیا میں دیکھا میں نے، سید حسین شاہ کر کے نام تھا اس کا. اس نے جو ہے آتنکوادیوں سے مطلب ان کی جو ہاں ان کے پاس ویپن تھے وہ چھیننے کی کوشش کی اور لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کی بھی جان چلی. میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے کہ سب کے پریواروں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، ہمت دے. اور ہم غم میں یہاں سے منڈی چندا سرائے سے تقریر میں، بلکہ پورے سنبھل کی طرف سے یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم سب غم کے اس موقع پر ان تمام متاثرین جنہوں نے، کسی نے بھائی کھویا، کسی نے اپنا بیٹا کھویا، اور ایک تو بتا رہے ہیں کہ نئی شادی ہوئی تھی، ہاں، اور اس کا شوہر، اس نے شوہر کھویا. ہم سب غم میں ان کے ساتھ آئے. ایک مرتبہ تمامی حضرات
दुरूद शरीफ भी पढ़ लें ताकि आगे का प्रोग्राम में शुरू करूं। पढ़े बुलंद आवाज से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम में और आप में जो रिश्ते होते हैं इंसानों के दरमियान, तो रुतबे के एतबार से, मकाम और मर्तबे के एतबार से खूनी रिश्तों में भाई बहन, शौहर बीवी, माँ बाप, इन रिश्तों में सबसे पहला जो रिश्ता होता है मर्तबे के एतबार से वो माँ का होता है। जोर से बोलो, किसका होता है? उसके बाद बाप का होता है। ये कह लो कि माँ बाप का होता है, ऊंचा मकाम रुतबा, ये हो गया मर्तबे के एतबार से। लेकिन वजूद के एतबार से, यानी सबसे पहला रिश्ता कौन सा कायम हुआ इस एतबार से, तो सबसे पहला रिश्ता माँ बाप का कायम नहीं हुआ है। रुतबा माँ बाप का बड़ा है, मगर वजूद के एतबार से, रिश्ते के कयाम के एतबार से कि इंसानों के बीच में सबसे पहला रिश्ता बना कौन सा, दो इंसानों के बीच में मेल और फीमेल कौन सा रिश्ता बना, सबसे पहला रिश्ता, तो इस एतबार से सबसे पहला जो रिश्ता कायम हुआ वो निकाह का रिश्ता कायम हुआ। जोर से बोलो, कौन सा रिश्ता कायम हुआ? मियां बीवी का, हस्बैंड और वाइफ का सबसे पहला रिश्ता। और मेरे दीनी भाइयों, ये भी मजे की बात है कि ये रिश्ता जमीन पर कायम नहीं किया पैदा करने वाले खुदा ने, बल्कि जन्नत में कायम किया। और वो रिश्ता क्या है और किसके दरमियान है? हम सबके बाप हजरत आदम और हम सबकी मां हजरत हव्वा के दरमियान कायम हुआ। जोर से बोलो जरा, सबसे पहला रिश्ता जन्नत में कायम हुआ। क्या मतलब है इसका? अच्छा, जमीन पे भी तो हो सकता है। इसमें एक नुक्ता ये भी है कि इंसानों, तुम जिस रिश्ते के वजूद की वजह से वजूद में आए हो वो जन्नत में कायम हुआ है, तो वहां जाने के बाद भी जन्नत में आने की सोचना और जितने भी रिश्ते बनाना जन्नत का रंग नजर आए, दोजख का रंग नजर नहीं आए। तो तुम्हारी जब बारात जाए तो सर पे अमामा सजा हुआ हो, डीजों के आगे नाचते हुए मत जाओ, शैतानियत करते हुए मत जाओ, जबान पर या हुसैन का नारा हो, गंदे गाने ना हो, बेहुदा बातें ना हो, पेशानी में सजदे की तड़प हो, हैदरी रंग हो और सही माना में इमाम हुसैन की मोहब्बत का ढंग हो। खाना भी खाओ, बारात भी लेकर के जाओ, बारात में जा रहे हो या लड़की वालों की तरफ से जा रहे हो, इस प्यार सादगी और मोहब्बत के साथ जाओ कि देखने वाले कहें कि जब गुलाम की शादी का आलम यह है तो करबला में इमाम का आलम क्या हो। इस तरह से निकाह कायम करो अपने घरों पर। मैंने अभी चंद दिनों पहले, मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैं सामने कह रहा हूं आपके, बल्कि कैमरा लगा हुआ, कैमरे के सामने कह रहा हूं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे मुसलमानों में डीजों के साथ बारातें चढ़ने लगे, लड़कियां भी और लड़के भी साथ में डांस कर रहे हैं, बेहयाई का नंगा नाच हो गया। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम कनीजाने फातिमा जहरा हो, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम कनीजाने सैयदा जैनब हो। हमारा मकसद सिर्फ नारा लगाना नहीं है, बल्कि अहले बैत का तरीका अपनाना है, ताकि आज के जमाने के लोग देखें तो ये कहें कि जब आज 1400 साल के बाद अहले बैत के मानने वालों का किरदार ऐसा है, तो दरबारे यजीद पलीद में हजरत ज़ैनब का किरदार कैसा होगा। सुभान अल्लाह। और अगर मेरी कौम की बेटियां बेपर्दा हो करके रोडों की जीनत बने, शादियों में बेहयाई का मुजाहिरा हो, लड़के अलग नाच रहे हो, लड़कियां अलग नाच रही हो, और पूरी पूरी रात बस्ती वालों को सोने न दें, अटैक वालों को परेशानियां आ जाएं, दिक्कतें आ जाएं, जो दिल के मरीज हैं उनके सामने, अल्लाह न करे
मतलब अटैक तक आ जाए उन पर। ऐ मेरे जवान दोस्तों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम करबला के मैदान को तो याद करो, हजरत ज़ैनब का पर्दा तो देखो, हजरत फातिमा ज़हरा का पर्दा तो देखो। मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल या अली। आज मेरी कौम की बेटियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं, और वो भी शादियों में, मर्द अलग नाच रहे हैं। कौम के नौजवानों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सजदे देखो, इमाम हुसैन के सजदे देखो। अल्लाह अकबर, फातिमा ज़हरा का शहजादा, शेरे खुदा का शेरे नर। मुझे वो 2 मिसरे याद आते हैं मौलाना मुशर्रफ साहब, सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। बेशक, सुभान अल्लाह। यजीदी भी हैरत में है कि गर्दन पे खंजर चल रहा है मगर हुसैन का सर सजदे से जुदा नहीं कर पा रहे। हैरत में पड़े हुए हैं कि ये कैसा सजदा हो रहा है, और आज हम उनका नाम ले, नमाज एक टाइम की ना पढ़े, मस्जिद में न जाएं, हम पेशानियों में सजदों की तलब पैदा ना हो, तो हमें खुद को भी देखना चाहिए कि कहीं हम यजीदी तो नहीं हो गए, कहीं यजीद वाला अमल तो नहीं कर रहे हम। जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी अदाओं से भी प्यार होता है। बेशक, ये दुनियावी इश्क वालों को देख लो, महबूबा की गली के चक्कर लगाएगा। और मजनू के बारे में मशहूर है कि लैला की गली का कुत्ता आ गया तो गोद में बिठा लिया। लोगों ने कहा बिल्कुल ही बेवकूफ हो, कुत्ते को गोद में बिठा रहे हो। कहा तुम कुत्ता देख रहे हो, मैं लैला की गली देख रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिससे मोहब्बत होती है उसके गली गलियारों से मोहब्बत होती है, उसकी अदाओं से मोहब्बत होती है। वो रात में जागने को कहोगे तो जागोगे, वो सोने को, आपका महबूब सोने को कहेगा तो सोओगे, जिस जो खाने के लिए बोलेगा वो खाओगे। यार ये दुनियावी इश्क में जब माशूक का आलम ये हो जाता है, महबूब का आलम ये हो जाता है कि जैसा वो चाहे वैसा पहनो, जैसा वो चाहे वैसा खाओ, जैसा वो चाहे वैसा चलो। दुनियावी इश्क में जब ये आलम है, तुम तो हुसैन के नाना के गुलाम हो, तुम तो हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो फिर तुम्हारा रंग हुसैनी नजर क्यों नहीं आता? बोलो, जोर से बोलो जरा। वो हुसैन इब्ने अली, अल्लाह अकबर कबीरा, जख्मों से बदन चूर है मगर मेरे हुसैन का सजदा कज़ा नहीं हुआ। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हैया अला सलाती। बड़े सारे लोग हैया अला सलाती, हैया अला सलाती। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हैया अला सलाती, या अला सला। अर्शे परी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला,
حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ اللہ اللہ وہ میرے امام کا سجدہ سبحان اللہ ایسا پیارا سجدہ کیا ایسا سجدہ کیا زمانے نے سر جاتے ہوئے دیکھا سجدے میں مگر آج تک وہ سجدہ چل رہا ہے سبحان اللہ اے میرے بھائیوں آج بھی میرے امام کا ذکر آتا ہے دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں میرے دوستوں ہم الحمدللہ حسینی ہیں تو ہمارے چہروں سے حسینیت نظر آئے ہمارے کھانے پینے کے طریقوں سے حسینیت نظر آئے ہماری پیشانی کی تڑپ بتائے کہ حسینی ہے ہمارے پہننے کا انداز بتائے کہ حسینی ہے اور ہماری شادیوں کا انداز بتائے کہ حسینی ہے واہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ ہماری بیٹیوں کا کلچر بتائے کہ حسینی یہ نہیں جو میں نے کئی شادیوں میں دیکھ لیا اپنے سنبل میں بھی پہلے نہیں تھا یہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا مگر اب پھر دوبارہ سے ناچ گانے ہونے لگے بتاؤ توبہ توبہ ناچ گانے کتنی غلط بات ہے ناچتے ہوئے جا رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ یہ وہ سنت ہے جو سب سے پہلے قائم ہوئی ہے تو جنت قائم ہوئی ایسی پیاری سنت قاری مشرف صاحب وہ ناچتے گاتے جا رہے ہیں ارے وہ نکاح بھی تو دیکھ جو شہنشاہ کونو مکان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا تھا وہ نکاح بھی تو دیکھ جو مولا علی شیر خدا زرہ لے کے عثمان غنی کے پاس گئے کہا میرے بھائی عثمان یہ زرہ جو ہے آپ مجھ سے خرید لو اس کی جو رقم ہو آپ مجھے دے دو اچھا اس سے ایک بات پتہ یہ چلی کہ عثمان غنی علی کو چاہتے ہیں اور علی عثمان غنی کو چاہتے ہیں اور ایک بات اور سنو بھائی صحابہ اور اہل بیت آپس میں علمی اختلاف ضرور تھے مگر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے عثمان غنی نے وہ زرہ خریدی اور جو پیسے آپ نے دیے زرہ کے بدلے میں جب مولا علی شیر خدا وہ واپس آنے لگے عثمان غنی نے آواز دی کہا میرے بھائی علی بات تو سنو وہ رک گئے کہا بتاؤ عثمان کیا بات ہے کہا یہ زرہ آپ نے مجھے دے دی میں نے آپ کو پیسے دے دی اب تو زرہ کا مالک میں ہو گیا کہا جی آپ ہو گئے آپ کو میں جو چاہوں اس زرہ کے ساتھ کروں ہاں کچھ بھی کیجیے کہا تمہارا نکاح ہے نا اور تمہاری شادی ہونے والی ہے لہٰذا میں چونکہ تمہارا دوست ہوں اور تمہارا ہم زلف بھی ہوں چونکہ حضور کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم جب رقیہ کا انتقال ہوا تو ام کلثوم کا نکاح بھی حضور نے حضرت عثمان غنی سے کیا تھا کہا کہ میں تمہارا ہم زلف بھی ہوں اور تمہارا دوست بھی ہوں اور ایک دوست کو چاہیے کہ وہ دوست کو تحفہ دے خوشی کے موقع پر لو یہ جو زرہ ہے نا جو میں نے تم سے خریدی ہے یہ بھی میں تمہیں کو تحفے میں دے رہا ہوں سبحان اللہ زور سے بولو بھائیو سبحان اللہ اسی لیے ہم لوگ تقریروں میں جب شادی کا نکاح کا پروگرام ہوتا ہے تو یہ دعائیں کرتے ہیں آپ نے امام کو دیکھا ہوگا مسجدوں میں نکاح ہوتا ہے یا میرج ہال میں سے بہتر تو مسجد میں ہے نکاح ہونا لیکن چلو مسجد آپ میرج ہال میں بھی کر رہے ہیں کہیں ہال میں تو نکاح وہاں پر بھی ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ اگر قدیم میں مسجد ہے تو مسجد میں نکاح ہو تو نکاح کیا دعا کرتے ہیں امام لوگ نکاح پڑھانے والے آپ نے سنا ہوگا جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یا اللہ دونوں کے درمیان یعنی جو بیوی اور شوہر جو بنے ہیں ابھی ان دونوں کے درمیان یا اللہ اس محبت کا صدقہ عطا فرما دے جو محبت تو نے مولا علی شیر خدا اور فاطمہ الزہرا کے درمیان عطا فرمائی دے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے دعا بولو زور سے اور بلکہ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ مہر فاطمی رکھا کرو جہیز میں چاہیے بہت زیادہ سامان اور جب مہر کا نمبر آیا مولانا ذرا ہلکا ہی ہاتھ رکھیے اور ہمارے مولانا مشرف صاحب کا جب نمبر آیا نکاح کا اور مولانا مشرف صاحب نے کہہ دیا ایسے بھی کہ بھائی خوشی کا موقع ہے ذرا تھوڑا سا اپنے امام صاحب کو بھی تیار کر دو تو بولے ان مولویوں کے تو پیٹ ہی نہ بھرتے یعنی 15,000 روپے کے کوٹ پینٹ پہن کے آیا ہے اور 2-3 لاکھ روپے لٹا دیے آتے آتے
اور 20 लाख रुपए शादी में लुटा दिए, वो जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं निकाह का, उन्हें देते हुए 3,000 रुपए की मौत आ रही है। अरे खुशी के मौके पर यार अपने इमाम साहब को 500,000 रुपए बढ़ाकर ही दे दो, उसमें क्या परेशानी है। वो कम दोगे तो तवज्जो है भाइयों आपकी। बहरहाल मैं ये कह रहा था आपसे मेरे साथियों, शादी करो सुन्नत के मुताबिक, अपना अंदाज अच्छा बना करके चलो, तुम्हारे पहनावे से हुसैनियत नजर आना चाहिए। मैंने कई जगह पर मशवरा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अमल किया। अभी फुलसिंगा से बारात गई थी, ये शहबाजपुर है करीब में, अल्हम्दुलिल्लाह दूल्हा के सर पे भी अमामा शरीफ था और उसके बहनोई के सर पे भी अमामा शरीफ था, उसके साथ वालों के सर पे भी अमामा था। मैं कहता हूं अमामा भी ना रहे तो कम से कम टोपी तो सर पे रहे यार, और वहां जाकर के नमाज भी पढ़ो। आप मेरी बात का बुरा ना मानना, मगर मैंने देखा है कितने लड़के हैं दूल्हा जिस दिन बने हैं उस दिन भी नमाज खत्म है उनकी, उस दिन भी नमाज नहीं पढ़ रहे। और नमाज कौन सी पढ़ी? जिस नमाज के बाद निकाह होना था, वो भी नमाज क्या पढ़ी? मजबूरी है। नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ, नमाज पढ़ना फर्ज है। जोर से बोलो नमाज पढ़ना, ऊंची बोलो नमाज पढ़ना। और जो कोई ये कहे कि नमाज जरूरी नहीं है, उनसे आप कह दो कि आप भी जरूरी नहीं है। इसलिए कि अली के शहजादे शेर खुदा के बेटे इमाम अली मकाम तलवारों की झनकार में भी सजदा नहीं छोड़े। और ये कैसा फितना परवर आदमी है जो ये कहता है नमाज की कोई जरूरत नहीं, नमाज के वक्त में बैठा रहता है। और मुझे तो उन नादानों पे भी हंसी नहीं अफसोस होता है कि तुम यार, तुम्हें हो क्या गया? एक आदमी को ऐलानिया तुम नमाज कजा करते हुए देख रहे हो, मगर फिर भी तुम उसके पीछे चल रहे हो। जो ऐलानिया नमाज छोड़ रहा है, जो नमाज का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा? तुम इमाम हुसैन का रास्ता अपनाओ कि वो तलवारों की झनकार में, नेजों की बौछार में, यजीदियों की अलगार में आखिरी सजदा करके बता रहे हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बात समझ आ रही है भाइयों आपको? अरे ये जो पीछे बैठे हैं ये बड़े उदास बैठे हैं, क्या बात है भाई? शादी आपकी भी हो जाएगी, उदास क्यों बैठे हो? इंशाल्लाह हो जाएगा, आपका भी नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह। और आ गया हो तो अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। जोर से आमीन बोलो मेरे भाई। देखो ये जो मैंने कहा शादी के हवाले से, इसमें सुधार लाओ यार। ये नाच गाने वाला काम हम लोगों का नहीं, ये तो बल्कि किसी का भी नहीं है, इससे परहेज करो। और मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहला रिश्ता हजरत आदम और हव्वा के दरमियान कायम। वाकई आपको सबको मालूम है, तने तनहा वो जन्नत में रहते थे, कहने लगे या अल्लाह तेरी जन्नत का जवाब नहीं, कोसर सभी चश्मों का जवाब नहीं, शाख तूबा की बहारों का जवाब नहीं, मगर मालिक कोई तो हो जो मुझ जैसा हो, जिस जिस जिन्स से मैं हूं उससे हो। तो उनकी बाई पसली से हम सबकी मां हजरत हव्वा का वजूद हुआ। बेशक आप सब जानते हो, बस मुझे बताना मकसद ये था कि उसी रिश्ते के नतीजे में दुनिया में इंसानों की आबादी हुई। जोर से बोलो दुनिया में इंसानों की आबादी हुई है। तो सबसे पहला रिश्ता कौन सा हुआ? निकाह का हुआ, मियां बीवी का हुआ ना। सबसे पहला रिश्ता वजूद के एतबार से इंसानों में जो कायम हुआ रिश्ता, वो मियां बीवी का रिश्ता है। तो मियां बीवी का रिश्ता कोई आसान रिश्ता नहीं होता। मैं बेटियों से भी कहता हूं, मेरी कौम की बेटियों, जब दुल्हन बन के तुम अपने दूल्हा के घर पे जाओ, अपनी ससुराल जाओ, तो निगाहों के सामने हजरत खातून ने जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार रखो। मेरी कौम की बेटियों, अपने शौहर के बाप को अपना बाप समझो, अब्बा कह करके बुलाओ, माँ को माँ कह करके बुलाओ। मैं खुदा की कसम लेके कहता हूं, अगर मेरी कौम की बेटियां अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप की निगाह से देखें, और शौहर के माँ बाप अपने बेटे की बीवी को बेटी की निगाह से देखें, तो कोई घर कोर्ट कचहरियों तक नहीं जाएगा, हर घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। बताओ गलत तो नहीं कहा मैंने? लड़ाई कब होती है? लड़ाई तब होती है जब वो आने वाली दुल्हन
अपने सास ससुर को इज्जत न दे, वो लड़के को कैप्चर करना चाहे, उसके माँ बाप से दूर करना चाहे, मैं उन बेटियों से हाथ जोड़ के पूछता हूँ, मेरी बेटियों ये बताओ, जो बर्ताव तुम अपने शौहर के माँ बाप, उसके भाई बहनों के साथ कर रही हो, अगर यही बर्ताव तुम्हारे भाई की बीवी तुम्हारे माँ बाप के साथ करे, बर्दाश्त करोगी? नहीं करोगी। तो जो अपने घर के बारे में नहीं सोच सकती जहां तुम पैदा हुई हो, तो उस घर के बारे में भी नहीं सोचो जहां तुम्हारी शादी हुई है। उस घर को अपना घर समझो मेरी कौम की बेटियों। चूंकि निकाह का प्रोग्राम है तो मैं उसी टॉपिक पे आपके सामने बात आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे दोस्तों, अपनी बेटियों को, बहनों को ये अच्छी तरबियत दो। बात पूरी करूंगा भी कारी गुलाम मुरसलीन साहब, और मैं बड़े बूढ़ों से भी कहूंगा कि कभी आपके बेटे की बीवी से कोई वीकनेस हो गई, कोई गलती हो गई, तुम्हारे मिजाज के खिलाफ बात हो गई, तो चौक चौराहों पे न लाओ। ये सोचो कि ये भी किसी बाप की बेटी है, तो गोया कि ये भी मेरी बेटी ही ऐसी है। कोई उससे चूक हो गई तो दुकानों पे, होटल पे, बैठक पे, फिर नतीजा क्या होता? जिस घर की लड़ाई चौराहों तक आई, तो फिर वो घर की लड़ाई बुझ नहीं पाई, कोर्ट कचहरियों तक पहुंच गई है। तो उसको बेटी कह करके समझा लो अलग में। अरे तुम जब बर्दाश्त करोगे, सब्र करोगे, एक दिन उस बेटी को भी एहसास होगा और वो मानेगी कि मैंने आज तक इन्हें सास ससुर की निगाह से देखा, मगर इन्होंने मुझे औलाद की नजर से देखा। इंसानियत होगी तो इंशाअल्लाह वो तुम्हें माँ बाप समझेगी। और ऐ मेरी बेटियों, तुम्हें भी मैंने कह चुका हूं कि अपने अपने सास ससुर को माँ बाप समझो। और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम लेके कहता हूं, कितनी बेटियों को तो मैं जानता हूं कि उन्होंने शुरू में बड़ी परेशानियां बर्दाश्त की, बड़े ताने सुने, बड़ी दिक्कतें बर्दाश्त की, मगर सब्र किया तो आखिर में सब्र का फल ये मिला कि वही घर जो उनके लिए कांटे बो रहा था, उसी घर में उनके लिए गुलाब खिलने लगे, उसी घर में उनके लिए तारीफ होने लगी। ये मैंने मर्दों से भी कहा, औरतों से भी कहा कि मोहब्बत से रहने की जरूरत है, अपने घर को घर समझने की जरूरत है। वो साथियों, देखो वो दौर, देखो सुभान अल्लाह, वो कैसा दौर था, वो कितना अच्छा दौर था। जब गुर्बत थी, मैं मानता हूं, मकानों में लेंटर नहीं थे, ये भी मानता हूं, छप्पर पड़े हुए होते थे, लोग पक्का कच्चे बर्तनों में खाया करते थे, मिट्टी के बर्तनों में वो खाना खाते थे। माना कि उनके घरों में शानदार खाने नहीं बनते थे, माना कि उनके घरों में पोसीदा हालात थे, मगर दिलों में मोहब्बत हुआ करती थी, एक दूसरे का एहतराम होता था। बड़ा बूढ़ा तो बड़ा बूढ़ा है, अपना दादा और बाप तो अपना दादा बाप है। मोहल्ले का कोई उम्र दराज भी आ जाता था, नौजवान लड़के उन्हें देख करके छिपने लगते थे, अदब करते थे। ए मंडी किशन दास सराय के मेरे दीनी भाइयों, उसी दौर को पलटा करके लाओ, एक दूसरे का अदब करना सीखो। दूसरे के बाप का अदब करोगे तो वो तुम्हारे बाप का अदब करेगा। और अपने घर का माहौल भी इतना अच्छा बनाओ। अपनी बेटियों से भी कह दो, अपनी बहनों से भी कह दो, हमें खाना लेट मिले ये गवारा है, मगर घर में कुरान न पढ़ा जाए ये गवारा नहीं है। ए बेटियों, कुरान पढ़ो, ए माओ कुरान पढ़ो। और मैंने ये बात देखी है, जिन घरों में बच्चियों की तरबियत अच्छी होती है, बचपने ही से उन्हें दास्ताने करबला सुनाई जाती है, दास्ताने बद्र सुनाई जाती है, दास्ताने उहद सुनाई जाती है, दास्ताने खैबर सुनाई जाती है, जिन्हें बचपने ही से हजरत गौसे आजम की जिंदगी के वाकयात सुनाए जाते हैं, हजरत वारिसे पाक की जिंदगी के वाकयात सुनाए जाते हैं, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी के वाकयात सुनाए जाते हैं। जिन बच्चियों को बचपने ही से कुरान अजीम सुनाया जाता है और वो कुरान पढ़ने की आदत डाल लेती हैं, वो शादी होने के बाद जब अपनी ससुराल जाती हैं, वहां पर भी उसी नियम को लागू कर देती हैं। वहां पर भी वो नाश्ता बाद में बनाएंगी, कुरान पहले पढ़ेंगी, वो फजर की आजान से पहले उठ के तहज्जुद के सजदे करेंगी, फजर की आजान के बाद फजर की नमाज पढ़ेंगी, अपने घर वालों को नमाज पढ़ाएंगी। तुम कहोगे मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कि जब हमारी बेटियां कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनकर अपनी ससुराल जाएंगी, उस घर को भी हुसैनी रंग में रंग देंगी। उसका असर क्या होगा? असर यह होगा कि उस परिवार के लोग कहेंगे, छोड़ो मियां जहेज लाई है नहीं लाई है, सीने से लगा के कुरान लाई। क्या कहने।
या अली। कि वो क्या कहेंगे बताओ? अरे कोई बात नहीं बहुत है, खूब। जहेज का सामान लाई है या नहीं लाई है, मगर सीने से लगाकर, मुझे आवाज आए जोर से, सीने से लगाकर, ऊंचा बोलो, सीने से लगाकर कुरान लाई। कुरान लाई है। और फिर वही जब कल को माँ बनेगी, वो दौर याद करो जब माँ कुरान की लोरी सुनाती है ना, तो उसका बेटा करबला के मैदान में नोके नेजा पे भी कुरान सुना देता है। बेशक। माँ जब तहज्जुद के सजदे करके, हैं, नमाज पढ़ के अपना पाकीज़ा खूने जिगर पिलाती है, क्या रिजल्ट आता है उसका, क्या बेहतरीन नतीजा आता है उसका। एक कौम की बेटियों, तुम्हारे लिए ये फैशन के जरिए से हमारे घरों में पाया मोबाइल, या पहले टेलीविजन चलते थे, अब तो मोबाइल का घर रहा है, तो इसके जरिए से जो ये फैशन करने वाली औरतें या नाचने गाने वाली औरतें, ये तुम्हारे लिए आई मॉडल नहीं है, ये तुम्हारे लिए नमूना नहीं है, ना थी ना है ना हो सकती है। तुम्हारे लिए अगर कोई नमूना है तो हसनैन की अम्मी जान फातिमा ज़हरा तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी इफ्फतो पारसाई, आपकी परहेजगारी, आपका पर्दा आज तक पूरी दुनिया में मिसाल बना हुआ है और कयामत तक बना रहेगा, कयामत तक बना रहेगा। हजरत शहरबानों की इफ्फतो पारसाई और आपका पर्दा, हजरत ज़ैनब का पर्दा, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का पर्दा, उनकी फकाहत, उनका तफक्कुह, उनकी इल्मी गहराई और गिराई आज तक मिसाल बना हुआ है। जब दौर अच्छा था ना हम लोगों का, यानी मुसलमानों का, मैंने एक वाकया पढ़ा, अल्लाह अकबर, घरों के माहौल इतने अच्छे होते थे पहले, इतने अच्छे होते थे कि एक मुहद्दिस से बहुत बड़े, उनका नाम है हजरत इब्ने सीरीन, वो फरमाते हैं मेरे घर के माहौल का असर ये हुआ कि मेरी बहन सिर्फ 11 साल की उम्र में कुरान पाक की हाफिजा हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। कितने साल की उम्र में? सिर्फ 11 साल की उम्र। और फरमाया क़िरात के मामले को तो इतना जानती थी कि मैं भी बाज़ मसाइल में मुझे लगता था कि मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं उनसे पूछता था, वो फौरन जवाब दे दिया करती थी। तो ऐसी हमारी बेटियां होंगी, वो दुल्हन बन के दूसरों के घरों में जाएंगी, कितना अच्छा माहौल बनेगा। और ऐ मर्दों, मैं तो तुमसे भी कह रहा हूं, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें नाजरा पढ़ाया था, कब से नहीं पढ़ा है तुमने नाजरा, मुझे बताओ। रमजान शरीफ में पढ़ा बस, रमजान के बाद तुमने कुरान खोल के नहीं देखा। तुम्हें क्या हो गया यार? कुरान पाक क्यों पढ़ नहीं पढ़ते? पाबंदी से कुरान पढ़ा करो। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, आंखों में सजाने को ये कुरान नहीं है, आंखों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रस्ते निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। सुभान अल्लाह। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं। क्या कहने हुई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे बड़े अब्बा बैठे हुए हैं, तो हमारा तो रिश्ता मंडी की संदास सराय से बहुत पुराना है, और इतना पुराना है कि हमें खुद याद नहीं आता है कि कितना पुराना है, क्योंकि पुराना ही इतना है, बचपने ही से है। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने शाहनवाज कहा, तो असल में फुलसिंगा भी में थोड़ी देर मुझे शिरकत करना है। खैर, आपकी मोहब्बत थी, और मैं इंशाल्लाह 3 तारीख वाले का भी कुछ ना कुछ करता हूँ आपके प्रोग्राम का इंशाल्लाह। मेरे बड़े अजीज, आपके ससुराल है यहीं पर माशाल्लाह, वो कहाँ है जिनका जवाब है? वो लाजवाब है, यहाँ पर नहीं है। कोई बात नहीं, चलो अल्लाह ताला कल है जवाब है आने वाले कल है। चलिए अल्लाह ताला मुबारक फरमाए भाई, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए, आप सब लोगों को शादो आबाद रखे,
आखिर में एक बात ये कह के जाऊंगा कि हमारे युवा जवान लड़के भी बैठे हुए हैं कि देखो भाई, आप लोग आधी रोटी खा लो मगर अपने हाथों में कलम ले लो। और जो बुजुर्ग बैठे हैं इनसे कहूंगा, आधी रोटी खा लो मगर अपने बच्चों को पढ़ा लो। समझ में बात आई? लॉयर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, दीनी तालीम भी दो। वैसे दीनी और दुनियावी ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा है, वरना आप डॉक्टर बन के भी अगर लोगों की खिदमत करेंगे तो अल्लाह उसमें भी आपको सवाब अता फरमाएगा। आप लॉयर बन के बेकसूर लोगों का केस लड़ेंगे, कमजोरों की मदद करेंगे, अल्लाह उसमें भी आपको सवाब अता फरमाएगा। तो दीन का मतलब ये है कि कुरान और हदीस की तालीमात आप हासिल करें। वो 4 नुस्खे मुझे याद आते हैं कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैं अपने बच्चों से कहूंगा खास तौर पे कि तालीम की तरफ जरूर तवज्जो दें। इल्म बड़ा जरूरी है और दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जिनके पास इल्म होता है। अपने संबल के एसपी साहब के पास एक दफा मैं भी था, रिसेंटली ऐसी बात आ गई, कहने लगे हजरत मैंने बचपन ही से ये सोचा था कि मुझे आईएएस बनना है। तालीम की बात आई तो मैं बता रहा हूँ। कहने लगे हमारे मोहल्ले में एक आईएएस अधिकारी थे, डीएम थे, कोई उन्होंने नाम नहीं मुझे बताया, मेरे जहन से निकल गया। हजरत उन्हें मैं देखता था तो सोचता था कि मुझे आईएएस ही बनना है, तो बचपन ही से पाप। तो हमारे बच्चे भी जो स्कूल में पढ़ते हैं वो बचपन ही से ये विजन, ये टारगेट अपनी जिंदगी का कि मुझे ये गोल है और मुझे इस गोल को अचीव करना। मुझे जो है जैसे ख्वाब देखो, ख्वाब भी देखो ना तो बड़ा देखो, मतलब ख्वाब भी देखो तो सितारों का मत देखो, चांद का देखो। चांद का देखोगे तो सितारे तो मिल ही जाएंगे। जैसे एपीजे अबुल कलाम ने कहा था, ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता, ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता। उसकी तड़प इतनी हो कि मुझे अपनी मंजिल तक जाना है, पढ़ने का जज्बा हो। वो लड़का है कासिम, जरा बड़ा अच्छा लड़का है, उसके पापा वो खिचड़ा बेचते थे, बिरयानी रुकनुद्दीन सराय, माशाल्लाह जज बन गया। आया था मुझसे मिलने, इतना अच्छा लड़का है, आदत अखलाक का माशाल्लाह, पढ़ गया। तो तुम भी ये सोचो, ये सोचो कि ये मत सोचो कि हम गरीब फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम पढ़ेंगे, कैसे खर्चा पूरा होगा। अरे यार, वो एक शायर ने कहा था, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान लिया तो ठान लिया। हमारे दोस्त की शाहिद, मैंने शायद बुलाया था उनको अपने संपर्क के साथ, तो हम किया करता है, तो वो माशाल्लाह यूपीएससी एग्जाम ज्यादा उसने तो आप हैरत होती है सर, जो स्टूडेंट अपने सीने में कुरान के 30 पारे महफूज कर सकता है वो दुनिया का हर इम्तिहान भी निकाल सकता है। क्या नहीं कर सकते हमारे स्टूडेंट, चाहें तो मेहनत करें, क्या कुछ नहीं कर सकते, बस तालीम की तरफ आओ। मैंने आपसे कहा हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। और बेटियों को भी पढ़ाओ, क्योंकि ये बेटियां कल को माँ बनेंगी जब शादी हो जाएगी तो। और जब बेटी ये जब माएँ तालीम याफ्ता होंगी, हकीम साहब, फायदा क्या होगा? मैंने इराक का एक वाकया पढ़ा, मेरा दिल खुश हो गया। हुआ ये कि 1988 में एक वहां पे जो है एक बच्चा, वो प्राइमरी में पढ़ता था, उसकी कॉपी वॉपी चेक की उसकी माँ ने, तो माँ ने राइटिंग देखी तो बहुत अच्छी राइटिंग थी। तो माँ ने कहा बेटे इन्नी उरीदु अन तकून तय्यारन, अरबी जबान है उन लोगों की, कहा बेटे मैं तुम्हें पायलट बनाना चाहती हूँ, पायलट। माँ ने पूछा, माँ ने कहा बेटे वो इसलिए बनाना चाहती हूँ कि मैं जब भी मक्का शरीफ के सफर पे जाऊं, मदीना शरीफ के सफर पे जाऊं, ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जाऊं मेरे बेटे, तो जिस जहाज में ट्रेवल करके जाऊं उसका पायलट कोई और ना हो, तू ही हो मेरा बेटा। तो माँ ने ख्वाब दिखाया ना, बोलो जोर से, माँ ने ख्वाब दिखाया ना। तो मैं अपनी माओ से भी कहता हूं, कौम की माओ से, कि बच्चों को अच्छी सोहबत दो, अच्छे संस्कार दो। अगर वो गालियां बकते हैं उन पे नजर रखो, आज वो दूसरे को गाली बकाएं, कल को तुम्हें गाली बकेंगे।
पड़ोसी को गाली दी है तो उस पर नजर करो भाई तूने गाली क्यों दी, तेरी जबान पे ये गाली क्यों आई। अपनी बस्ती के माहौल को इस तरह से बैलेंस करो कि लगे कि यहां से इल्म छलक रहा है, यहां से डिसिप्लिन का रोल नजर आए, रंग नजर आए। मां ने ख्वाब दिखाया बेटे तुझे पायलट बनाना चाहती हूं, और उस लड़के ने 1988 की ये बात है, उसने मेहनत की और उसके बाद पता है 36 साल के बाद वो दिन भी आया कि जब उसकी मां बगदाद एयरपोर्ट पे अंदर जाती है फ्लाइट के करीब और मेन डोर पे एंटर होती है, तो उस मेन डोर पे जो खड़ा हुआ था पायलट की शक्ल में वो कोई और नहीं था, इसी का बेटा था। और उस पायलट ने अपनी कैप उतारी और माँ के चरणों में डाल दी, वो कदम झुक तो माँ के कदम को झुक के चूमा। वो कहा माँ आज जो यहाँ तक पहुंचा हूं इसमें मेरी मेहनत का उतना सिला नहीं है जितनी तेरी दुआओं का सिला है। जरा बोलो यार, जोर से बोलो। ऐसी तकरीरें भी सुना करो कम से कम। हाँ थोड़ा सा जरा मैं ज्यादा जोश में बोलूं उससे बेहतर यह है कि मैं आपको कुछ काम की बातें बताऊं जिससे आपके अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा हो। जवानों तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बेहतरीन बैरिस्टर बनो, बेहतरीन डॉक्टर बनो, बेहतरीन लॉयर बनो। अल्लाह करे तुम्हारा नाम रोशन हो, दूर दूर तक लोग तुम्हें पहचाने। जानते हो मां ने ख्वाब दिखाया, आंखों में आंसू आ गए मां के। कहा बेटे तूने करके दिखा दिया, मुझे बड़ी खुशी है। कहा मां मुझे खुशी पायलट बनने की उतनी नहीं है जितनी इस बात की खुशी है कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। जितनी खुशी इस बात की है कि मेरी वजह से मैंने कोई काम तो ऐसा किया कि अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब एक जुमला बोल रहा हूं मैं, मगर पूरा सुन लेना। अपने माँ बाप को रुलाओ, आज तक तुमने नहीं सुना होगी तकरीर, मगर आज सुनो। अपने माँ बाप को रुलाओ मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू। वाह, खुशी के आंसू। कैसे रुलाओ? गोविंद जायसवाल जी यहाँ के बनारस के, आपके यूट्यूब का दौरा यहाँ से जाने के बाद देख लेना आप लोग। मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी। रक्षा चलाते रक्षा पोलक। कोई स्कूल में पढ़ता था बेचारा, कोई किसी मालदार लड़के से उनकी फ्रेंडशिप हो गई तो वो उसके साथ चले गए घर पे। वो गोविंद जायसवाल उनके साथ चले गए लड़के के, अपने फ्रेंड के। वो मालदार आदमी था, तो उस मालदार लड़के के पापा ने गोविंद जायसवाल का कान पकड़ के घर से निकाल दिया कि तुम्हारी औकात क्या है हमारे घर में है, वो तुम्हारे वाली जो मुंह में आना था यार उसके दिल पे लग। बड़ा रोया घर जाके। उसके पापा ने कहा, शाम को रस्ते में लाके आया, कहा पापा बात गरीबी की, बात सम्मान यार, गरीब आदमी की बेइज्जत हो। आगे जब हुआ क्या था, पापा ऐसे सो गए। इसके पापा तुम्हारी रक्षा, उसे क्या पता कौन सा पद कितना ऊंचा होता। कहा बेटे मैं तुझे कानी गो बनाऊंगा। वो कानी गो को सबसे बड़ा समझते थे। और स्कूल में आके अपने टीचर से बोला सर मुझे कानी गो ही बनना है। उसने 2-4 क्लास पढ़े, टॉप किया, क्योंकि जिसकी आंखों में वो मंजिलें पार कर जाता है, याद रखना। जिसके इरादों में फौलाद हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, हौसला हो, तो मेरे साथियों वो अपने ख्वाब को पा लेता है, पैदा करने वाला भी उसकी मदद फरमाता है। बेशक। और लड़के पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, वो 16-16 घंटे 17-17 घंटे पढ़ता था। हर क्लास में टॉप करता रहा। टीचर ने देखा कि जीनियस है, इतना इंटेलिजेंट बच्चा। कहने लगे बेटे तुझे क्या बनना था? सर मुझे कानून बनना था, क्यों बनना था? इसलिए बनना, मुझे इज्जत पानी है, खुद को भी और अपने पेरेंट्स को भी इज्जत दिलानी है, अपने परिवार वालों को भी इज्जत दिलानी है। कोई मालदार है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो हमारी बेइज्जती करेगा। और किसी ने कहा ना राजा का बेटा राजा हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है। रक्षा चलाने वाले का बेटा भी राजा हो सकता है, मेहनत करने वाले का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। टीचर ने कहा बेटे कानी गो बनोगे? अच्छा टीचर भी वो प्राइमरी के थे, उन्होंने कहा बेटे मेरा मशवरा ये कोतवाल बनो, उससे ज्यादा इज्जत होगी। उन्होंने जहां तक उनकी सोच थी। आगे बढ़ते बढ़ते इंटर तक जब वो पहुंचे और उनके अंदर टैलेंट और सलाहियत टीचर्स को नजर आने लगा, तो इंटर में जाकर के उनसे किसी टीचर ने कहा, ऊपर के क्लास में, इंटर में ये से ऊपर वाले क्लास में, कहा बेटे
अगर बनना ही है ना तो फिर वो बनो जिसके नीचे कानी गोभी रहते हैं, कोतवाल साहब भी रहते हैं, सीओ साहब भी रहते हैं, एडिशनल एसपी साहब भी रहते हैं, एसपी साहब भी रहते हैं, जिसके अधीन पूरा जिला आता है। कलेक्टर बनो, डीएम बनो। का सर ये क्या होता, क्या यही तो सब कुछ होता पूरे जिले में? तो का सर ये कैसे बनेंगे? तो फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करो। उन्होंने एक डायरेक्शन दी। गोविंद जायसवाल की अपनी हिस्ट्री बयान करते, बिल्कुल वो रोने भी लगते हैं। वो बयान करते, मैंने मेहनत की, हमारे पापा रक्षा चलाते थे, मैं दिल्ली आया, वहां पर आकर कोचिंग सेंटर में पढ़ता था और एक कप चाय भी नहीं पी पाता था। कारी मुशर्रफ साहब कहते हैं आधा कप चाय पीता था, बस 2 टाइम का खाना नहीं पीता था, एक ही टाइम का खाना खाता था। और अपनी इसको अपनी जो फीस थी मेरी और जमा करने के लिए, वो मैं जो टाइम बचता था ट्यूशन पढ़ाता था, उसी फीस से रूम का किराया भी देता था, उसी फीस से मैं जो है अपने अपना पेट भी पालता था और उसी फीस से मैं अपना खर्च भी निकालता था एजुकेशन का। और उधर घर से फोन आते थे तो वहाँ की माली हालत कमजोर, हमारे पापा के पाँव में सेप्टिक बन गया, वो रक्षा कराने से भी गए गुजरे। और अब इतनी परेशानी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, हौसला नहीं हारा। मैंने ये सोचा कि लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। वाह। पापा के पाँव में सेप्टिक हो गया, सोचिए कितनी परेशानी रही होगी। लेकिन हिम्मत और छोटी को देखा आपने, दीवार की सकती फिर गिर जाती, वो बेचारी फिर से गिर जाती और फाइनली वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाती। वो छोटी सी चूंटी भी ये बताती है कि मैं तो चूंटी होकर हौसला नहीं हारती, तो इंसान होकर हौसला हारे बैठा है। तो गलत तो नहीं कहा? ऐ जवानों, स्कूल में पढ़ने वाले मेरे प्यारे, जो मुझसे छोटे हैं, छोटे भाई, जो बड़े हैं मेरे बड़े भाइयों, हौसला रखो, पढ़ो मेहनत से। एक दिन में तो नहीं होगा, मगर एक दिन जरूर होगा। एक दिन में तो अभी हमारे रफत भाई, हमारा बड़ा पुराना मामला था, हमारे वाले साहब भी जाते थे माशाल्लाह से, तो एक दिन में तो नहीं हुआ, मगर एक दिन हो गया कि नहीं हो गया? मंजिल जरूर मिलेगी, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी परसों मिलेगी। एपीजे अबुल कलाम ने जो कहा उसको जहन में बिठाओ। बल्कि मुझे हिंदी की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं, ये सुन लो। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो टॉपिक है वो एजुकेशन का टॉपिक है। सबसे ज्यादा जरूरत है तालीम फैलाने की। वो मुझे याद आता है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। और राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया। 2 मिसरे बड़े शान, वो बड़ा अच्छे शायर थे भाई। उनके 2 मिसरे के परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। गोविंद जायसवाल, घर पे खर्च नहीं और मत खर्च को पैसे नहीं, पापा के पाँव में सेफ्टी। कहते मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, अब मैंने पेपर तो सारे दे दिए, मेरा जो है इंटरव्यू होना था। अब उनके पास कपड़े भी ऐसे नहीं थे जो प्रोफेसर हजरात के सामने इंटरव्यू दें। तो कहा, मैंने डरते डरते अपनी बहन को फोन किया। एक बात बताऊं, बहन बड़ी हो तो माँ का रोल अदा करती है, और बहन छोटी हो ना तो वो रोल अदा करती है जो छोटी बेटी अदा करती है। बहन का मकाम समझा करो, बहन के रुतबे को समझा करो। बड़ी बहन, कहते हैं मेरी बड़ी बहन के घर पे, वो खुद प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी का टाइम था, खुद बताते हैं, कहते 2000 रुपए उन्होंने खर्चे के लिए बचा के रखे थे कि ये 2000 रुपए डिलीवरी के टाइम पे काम में आएंगे जब बच्चे की पैदाइश होगी। लेकिन मेरी बहन ने रिस्क लिया, अपने आप को खतरे में डाला और वो 2000 मुझे भेजे। मैंने उन 2000 के अच्छे से कपड़े खरीदे और जब इंटरव्यू देने गया, कहते मैंने इतना पढ़ा था, इतनी मेहनत की, 17 घंटे तक तो उन्होंने जिक्र किया अपने इंटरव्यू में
اتنی محنت کی تھی. جب وہاں پہ مجھ سے سوال جواب ہوئے, بڑے بڑے پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے تھے, کہتے میں نے ہر بات کا بہترین جواب دیا. جب میں آنے لگا تو مجھ سے ایک پروفیسر نے پوچھا, کہا گوبند ابھی تو تمہاری بہت کم عمر ہے اور بس اچھے میں تمہاری شروعات ہے, ابھی تو اور بھی چانسز ملیں گے, اگر فلوپ ہو گئے تو کیا کرو گے؟ کہا سر میں نے محنت اتنی کی ہے کہ یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ میں فلوپ بھی ہو جاؤں گا. مجھے اوور کانفیڈینس نہیں لیکن کانفیڈینس ہے, یہ میں نے سوچا ہی نہیں. کہتے ہیں جب میں نے انٹرویو دے دیا, میں آ گیا, اور جب ریزلٹ آیا اور میرا نام اس میں یہ مجھے دھیان نہیں رہا, انہوں نے 42واں نمبر بتایا اپنے رینکنگ میں, 42 یا 40, مطلب بہت اچھے نمبر پہ وہ آئے تھے. کہتے ہیں کہ میرے پاس کال آئی, میرے دوست کی کسی نے کال کی, تو کہتے ہیں کچھ دیر تو مجھے ایسا لگا جیسے میں زمین پر نہیں ہوں, ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. اور سب سے پہلا جو میں نے فون کیا, اپنے پتا جی کو فون کیا, اور میں نے اپنے پتا جی کو فون کر کے بتایا, پاپا تمہارے بیٹے نے یو پی ایس سی ایگزام نکال لیا ہے, وہ کامیاب ہو چکا ہے. کہتے ہیں میرے پاپا اتنے خوش ہوئے کہ پلٹ کر کے انہوں نے کوئی رپلائی نہیں دیا, بلکہ صرف رونے کی آواز آ رہی تھی. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے پاپا خوشی میں رو رہے ہیں. یہی جملہ میں نے تم سے بولا تھا کہ اپنے ماں باپ کو تم بھی رلاؤ, مگر غم کے آنسو نہیں, خوشی کے آنسو رلاؤ. انہیں تم بھی رلاؤ, مگر اس طور پہ نہیں کہ وہ روتے ہوئے یہ کہیں کہ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دیں, بلکہ وہ روتے ہوئے یہ کہیں کہ اللہ ایسی اولاد سب کو دے جیسی اولاد اللہ نے مجھے عطا فرمائی. وہ روتے ہوئے یہ کہیں, اس طریقے سے روتے ہوئے کہیں. کہتے ہیں میرے پاپا نے پلٹ کے بس اتنا کہا, گووند بیٹے گھر آ جا. اس کے بعد میرے گھر پہ بڑے بڑے پولیٹیشین حضرات, بڑے بڑے سب کچھ کہتے ہیں کچھ دنوں پہلے کا عجیب واقعہ ہمارے پاپا کے ساتھ ہوا تھا. وہ جو رکشہ چلاتے تھے, اس رکشے کا ٹائر ایک ہوم گارڈ نے پھاڑ دیا تھا, اپنے بیت سے زور سے مارا کہ ٹائر پھٹ گیا اس کا. کہتے ہیں اس ہوم گارڈ سے ہمارے گاؤں کے کوئی وکیل صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا ان کے رکشے کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھا, ان کا بیٹا یو پی ایس سی کی تیاری کر رہا ہے, ہو سکتا ہے ڈی ایم بن جائے. تو کہتے ہیں ہوم گارڈ نے مذاق اڑایا کہ یہ منہ اور مسور کی دال. کہتے ہیں دوسرے جب وہ میں اخبارات میں چھپا میرے بارے میں, کیسے ایسے بنارس کا گووند جیسوال, وہ اتنے شاندار نمبر سے اس نے یو پی ایس سی ایگزام نکالا. کہتے ہیں سب لوگ میرے گھر پہ آ رہے تھے, تو وہ ہوم گارڈ صاحب بھی میرے گھر پہ آئے تھے معافی مانگنے کے لیے. دیکھو ایجوکیشن کی پاور ہوتی ہے بھائیو. بس میں یہی کہوں گا کہ آدھی روٹی کھا لو مگر خود بھی پڑھ لو, دوسروں کو پڑھا لو. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تعلیم کی طرف توجہ دیجئے, علم حاصل کیجئے. آدھی روٹی نہ ملے تو فاقہ کر لو. ارے اس سے آگے کا جملہ کہہ دوں, تھالی پہ کھانا کھانے کو نہ ملے تو ہتھیلی پہ کھا. تھالی نہیں ہے, ہتھیلی تو ہے, ہتھیلی پہ کھا دو. مگر بچوں کو, زور سے بولو بچوں کو, آواز آئے بچوں کو, آدھی روٹی کھائیں گے. میرے ساتھ بولو بچوں کو, زور سے بولو بچوں کو. مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاہ نواز ہم اور بھی بول دیتے, مگر وہ متولی ظریف صاحب کی برسی ہے, وہاں سے بار بار کال آ رہی ہے, موبائل میں سائلنٹ پہ لگا دیا. انشاءاللہ چمن رہے گا, پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. وما علینا الا البلاغ. قاری مشرف صاحب آپ دعا کرا دینا, میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیے, سلام علیکم.